Good morning, one and all. Today is 29th May 2021 and the last session on cloud computing. So we'll be continuing the security portion of the cloud computing. Yesterday we have seen three types of security: data security, network security, host security. We have already gone through data security, that is through the encryption, and we have already seen network traffic backups and file systems encryption, and see the traditional and the cloud decryption methodology. And we had already started with the network security, under which we have discussed about the firewall. Now let's talk about the traditional perimeter security under the firewall. This we have already seen: firewall protects perimeter. So in traditional perimeter security, we will be talking about the different ports which are being used in international market, international level पे और security levels पे कौन कौन से ports use होते हैं for providing the network security. These ports are the hardware ports that is responsible for the data communication over the network. So border security group that listens to all traffic on the port 80 and 443. So usually हम भी इंडिया में भी जो पोर्ट यूज करते हैं 80 और 443 वगैरह ही पोर्ट यूज करते हैं for the security on the network. Then DMZ we have already seen demilitarized zone. That security group also listens the traffic, network traffic from the border group on the port 80 and 443. Internal security group of the firewall. This internal security group of the firewall for accessing the data available in the database. So that network traffic also works on the port 3306 from the demilitarized zone security group. The access to the servers in the internal security group requires compromising the outer group. जो internal group है, that accessibility is being compromising the outer group. Then the DMZ, and then finally one of the internal servers. So it is basically compromising on the internal security group through these ports only. That is accessibility only through these ports only. So there is a possibility of accidentally grant global access into the internal zone and thus expose the zone. मतलब अब क्या होगा अगर ये क्लाउड एनवायरनमेंट नहीं हुआ, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म हुआ, तो जो हमारा इंटरनल डेटाबेस है, दैट इंटरनल डेटाबेस को ग्रांट्स भी मिल सकती है और उस इंटरनल डेटाबेस को कोई भी एक्सेस कर सकता है. दैट इज इन आर ट्रेडिशनल firewall security mechanism, which was not on the cloud. Now let's see the advantages of firewall. Control firewall rules remotely, and intruder does not have a single target to attack as does with the physical firewall. जो control firewalls रहते हैं, that is on the cloud, which we are talking about, which is being accessed remotely, उसका जो है वो फिजिकली उसको हैक किया नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि उसको किसी को भी ग्रांट नहीं रहती है उसके नेटवर्क सेगमेंट को एक्सेस करने के लिए, किसी को भी ग्रांट नहीं रहती. नो अपॉर्चुनिटी टू एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय नेटवर्क रूल्स एंड दस परमानेंटली रिमूव एवरीवन्स एक्सेस टू अ गिवन नेटवर्क सेगमेंट. मतलब जो नेटवर्क सेगमेंट है, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए जो नेटवर्क सेगमेंट है, उसको एक्सेस करने के लिए किसी को भी ग्रांट नहीं दी जाती है. So there is no opportunity of accessing the internal database even through the firewall on the remote login, remotely. That is our control firewall. So on the cloud, when it is being talking about, so there is no possibility of doing that. But जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं, ट्रेडिशनल पैरामीटर, वहां पर ग्रांट एक्सेसिबिलिटी अलाउड है. okay? So उस केस में जो इंटरनल डेटाबेस है, that can be exposed to the intruder. This is the advantage of, we have already seen the advantage of this advantage of traditional over the advantage of cloud over the traditional network security mechanism. Now let's talk about what network security includes.
These are some of the points which have been included in the network security. Run only one network service. So this include only one network service plus necessary administrative services on each virtual servers. So the virtual servers which have been created, where the information is being distributed, servers are being created. So over the network only one network services is accessible plus the administrative services are available. मतलब एक से ज्यादा सर्विसेज एक सर्वर के ऊपर वर्क ही नहीं करेगी, तो वहां पर हैकिंग के भी इंट्रूशन के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं, रहते ही नहीं है, नील रहता है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी ग्रांट्स वगैरह है ही नहीं और एक सर्वर पे तो अवेलेबल है ही नहीं. ओके, then the next one is do not open up direct access to your most sensitive data. So most sensitive data cannot be opened like this. So the settings are being done through the this network security is through the firewalls की settings इस तरह से की जाती है ताकि वो direct access sensitive data को नहीं लिया जाता है. Open only the ports absolutely necessary to support a server services and nothing more. मतलब सिर्फ वही open ports किए जाते हैं जो absolutely necessary है for service providing और उसके अलावा कोई भी information नहीं. Only read option is available and that too only for those which are being having the required privileges to access this. और वो भी एक ही सर्वर पे एक ही सर्विसेज अवेलेबल है. जो एब्सोल्युटली नेसेसरी सर्विसेज है उसी के लिए सर्विसेज ओपन की जाती है, उससे ज्यादा नहीं. Limit access to your services to clients who need to access them. सिर्फ उन्हीं clients को access limited services दी जाती है जो avail करना चाहते हैं, जिनको privileges avail है. Even if you do not if you are not doing load balancing, user reverse proxy. मतलब अगर load balancing नहीं करना है, जो load balancing में means that the server is having the part of allowing only specific clients to access the internal database through the firewall. तो प्रॉक्सी सर्वर्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं. प्रॉक्सी सर्वर में क्या रहता है कि एक लोकल आईपी क्रिएट किया जाता है, उस लोकल आईपी से नेटवर्क के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो ओनली वन नेटवर्क कैन बी एक्सेसिबल डायरेक्टली टू द मेन सर्वर एंड a temporary proxy server is being created which allows the other network under that can be accessible. और वो भी है client, only client services will be provided. उसमें कोई extra services, only usage services will be provided. So use the dynamic nature of the cloud to automate your network embarrassments. So automatically the dynamic nature of the cloud is will be incorporated using the network security mechanism on the cloud. Now let's talk about NIDS. NIDS is stands for Network Intrusion Detection System. Network N stands for Network Intrusion Detection System. So it's perimeter security which often involves network intrusion detection system such as SNOT, which monitor local traffic for anything that looks irregular. For example, irregular traffic include port scans, denial of service attacks, known vulnerability exploit attempts. So the purpose of NIDS is network intrusion detection alert of attacks. तो ये नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है कि ये नेटवर्क के अंदर कोई अगर इंट्रूशन कर रहा है, इंट्रूशन मींस अनऑथराइज्ड पर्सन जो है नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका एक सिस्टम बनाया है NIDS. मतलब हमने जब फायरवॉल की बात की तो फायरवॉल जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पर फिर भी एक सिस्टम डेवलप किया गया NIDS जो नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है, जो डिटेक्ट करेगा कि अगर कोई इंट्रूशन उसके अंदर अनऑथराइज्डली यूज एक्सेस कर रहा है. ऑथेंटिकेशन, वैसे तो फायरवॉल जो है वो यूजर्स को ऑथेंटिकेट करता है, पर अगर वो यूजर जो है वो अनऑथराइज्ड हुआ, उसको प्रिविलेजेस नहीं अवेलेबल है, तो ये जो NIDS सिस्टम है जो जैसे कि स्नॉट है, जो मॉनिटरिंग करता है सर्विसेज को, जो देखता है कौन कौन से यूजर्स जो है वो एक्सेसिबल है, तो ये सिस्टम जो है वो इंट्रूशन को डिटेक्ट करता है, पता लगाता है कि कौन अनऑथराइज्ड पर्सन, अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो एक्सेस कर रहा है. जैसे उसमें इरेगुलर ट्रैफिक इंक्लूड्स, उसमें अगर सपोज नेटवर्क ट्रैफिक की बात करें तो उसमें नेटवर्क ट्रैफिक में क्या क्या चीजें देखेगा, वो पोर्ट स्कैन करेगा कि ये पर्टिकुलर पोर्ट मतलब क्या होता है. एक दिन मैं बताती हूँ कि ये हार्डवेयर कंपोनेंट है जहाँ से नेटवर्क कंट्रोल किया जाता है. नेटवर्क डेटा जो है वो ट्रैवल होता है थ्रू दोस पोर्ट्स, मतलब वायरिंग जो रहती है, फिजिकल वायरिंग रहती है या फिर वाईफाई के थ्रू भी जो कनेक्शन रहते हैं, इट इज थ्रू पोर्ट. So
one PC is connected to another PC through this IP. IP is the internet protocol which is used to identify a particular computer in a network. एक particular computer network में identify होता है और through these ports the data communicates. तो यहाँ पर कौन कौन से एग्जांपल्स है इरेगुलर ट्रैफिक के, जैसे पोर्ट स्कैन्स. पोर्ट को अगर स्कैन कर दिया किसी ने और उस पोर्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन डेटा जो है ट्यूशन जो है वो ले सकता है. फिर मतलब क्या करेगा ये सिस्टम, जो क्या करेगा NIDS, वो पोर्ट को स्कैन करेगा और पोर्ट को स्कैन करने के बाद अगर उसको पता चल रहा है कि इसमें कुछ इंट्रूशन हुआ है तो दैट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग NIDS. फिर और NIDS क्या करता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स. अगर किसी ने सर्विसेज को एक्सेस करने की कोशिश की, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, नेटवर्क सर्विसेज जो अवेलेबल प्रोवाइड की हुई है, तो वो भी ये सिस्टम डिटेक्ट करेगा. उसके बाद नॉन वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट अटेम्प्ट्स, मतलब एक से ज्यादा बार अजीब टाइप के एक्सेसिबिलिटी करना, कुछ अलग से मैसेजेस, वनरेबल मैसेजेस आना, तो उससे भी हमको पता चल जाता है, ये NIDS सिस्टम को पता चल जाता है कि अटैक्स इंट्रूशन जो है वो हुआ है. वो डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. मतलब ये तीन जो चीजें हैं इनसे वो डिटेक्ट कर लेता है NIDS नेटवर्क जो है वो इंट्रूशन डिटेक्ट कर लेता है. जैसे पहला पोर्ट स्कैन कर लेता है, फिर सर्विसेज जो है उनको डिनाई कर देता है अटैक्स आ रहा है तो, और वनरेबिलिटी है कुछ तो उनको देखता है कि अगर कुछ वनरेबिलिटी है तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये क्या काम करता है NIDS, ये अलर्ट मैसेजेस दे देता है. अलर्ट्स आते हैं जैसे कि योर सिस्टम हैज बीन used by some other intrusions और ये unauthorized person is being accessing the network services. इस तरह से ये सिस्टम जो है ये इंफॉर्मेशन जो है अलर्ट्स जो है वो फायर करता है. Port scans and Amazon cloud. So it cannot learn anything about the network in case of port scans and Amazon cloud. So we will be seeing that कि किस तरह से ये port scan करता है. It cannot learn anything about the network architecture of a particular organization by executing a port scan. Amazon security clouds deny all incoming traffic by default and request for ports that have not been opened by not responding. मतलब Amazon भी क्या करता है, ये पोर्ट स्कैन का सिस्टम एक्सेस करता है फॉर मतलब विच इज बीइंग डन बाय NIDS नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम. तो वो जो Amazon का जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो इनकमिंग ट्रैफिक्स को बाय डिफॉल्ट जो इनकमिंग ट्रैफिक्स है उनको हर बार स्कैन करता है, और जो अगर पोर्ट बहुत टाइम से ओपन नहीं है और उस पर कोई रिस्पॉन्डिंग नहीं आए तो उसको पता चल जाता है कि ये इंट्रूशन का चांसेस है. Scanning across all ports is a slow process because each closed port times out instead of actively denying the traffic. मतलब ये हर बार बहुत स्लो प्रोसेस है कि भाई बार बार पोर्ट स्कैन करना और उसको डिनाई करना कि भाई आप ये नेटवर्क ट्रैफिक इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो ये बहुत लंबा और बहुत धीरे स्लो प्रोसेस है. सो Amazon हैज इट्स ओन इंट्रूशन. इसने जो NIDS का जो सिस्टम है दैट इज ग्लोबल सिस्टम, तो उन्होंने क्या किया है, Amazon ने खुद का एक detection system banaya. So Amazon has its own intrusion detection system in place and does not allow its customers to execute port scan against their own servers. As a result, an active port scan is likely to be blocked before any real information can be gathered. तो जो NIDS है that is global. तो जो ये सिस्टम है वो ग्लोबली एक्सेस कर रहा है. तो हर इसने मैक्सिमम जो क्लाउड एनवायरनमेंट्स है उन्होंने अपना खुद का इंट्रूशन सिस्टम बनाया या सिक्योरिटी प्रोविजंस प्रोवाइड किए हुए. ये बहुत सारे लेयर्स में सिक्योरिटी लेयर्स में वर्क करता है, जैसे कि फायरवॉल की सिक्योरिटी लेयर्स है. तो इनका खुद का एक अपना इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है जिसमें कस्टमर्स अगर कोई एग्जीक्यूट करना चाहता है, पोर्ट स्कैन करना चाहता है सर्विसेज अवेल करने के लिए, तो दैट इज नॉट अलाउड. इवन single network segment on the network server is not authenticated by any of the user. कोई किसी को privilege नहीं है, एक बार बन गया तो कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता. ठीक है. सो एक्टिव जो उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्टिव पोर्ट स्कैन है वो भी ब्लॉक हो जाते हैं अगर कभी कुछ इंफॉर्मेशन कुछ पता चल गया कि ये हैक होने का, इंट्रूशन होने का सिस्टम है. तो और उसका पायलट अप्रोच रहता है उसका. अगर वो एक पर्टिकुलर सर्वर में प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली स्विच ओवर टू द अदर सर्वर एंड दैट सर्वर विल गो ऑन फॉर द रिपेयरिंग वर्क. तो सिस्टम जो है वो हॉल्ट नहीं होता है, इट विल बी इन कंटिन्यूअस मैनर. Now let's implementing the NIDS in cloud. Cloud में किस तरह से ये नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम जो है वो वर्क होता है.
दिस इज आवर क्लाउड एनवायरनमेंट. हमने क्लाउड एनवायरनमेंट में ऑलरेडी देखा था कि फायरवॉल में लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन सर्वर, application servers we have. So in NIDS, load balancer is responsible for balancing the load on the cloud, that is the services which are being provided or the avail of information through these load balancers, and the application server is one which is providing the services. So application servers बहुत सारे होते हैं. ये distributed environment दिखा हुआ है. देखो एक ही application server नहीं है, एक से ज्यादा application server है. जो हमने बताया था कि DMZ जो है वो कंट्रोल करता है. डीमिलिटराइज्ड जोन सिक्योरिटी ग्रुप कंट्रोल्स द एप्लीकेशन सर्वर. तो ये बहुत हाईली सिक्योर्ड. डीमिलिटराइज्ड मतलब क्या होता है? मिलिट्री के कंट्रोल के अंदर ये सर्वर्स रखे जाते हैं और उसका बहुत ही मतलब उसकी एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान नहीं रहती और किसी को भी नहीं प्रिविलेजेस रहते हैं. तो वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज देयर फॉर इम्प्लीमेंटिंग NIDS इन द क्लाउड. तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स क्रिएट होते हैं. तो एप्लीकेशन सर्वर जो है वो एक से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर. तो ये कौन सा एनवायरनमेंट है? दिस इज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स क्रिएट किए हुए हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर क्रिएट करने का क्या एडवांटेज है? डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर क्रिएट करने का ये एडवांटेज है कि one network services runs under one server and the other network service runs under one server. So Intrusion is not able to access the services even if one service is availed by the Intrusion. तो वो कोई यूज नहीं कर सकता. पहली बात तो इसका पोर्ट जो है, ये देखो ये पोर्ट को स्कैन पोर्ट बता रहा है. ये पोर्ट्स जो है वो पोर्ट स्कैन किया जाता है. NIDS जो सिस्टम है वो पोर्ट स्कैन करेगा और फिर क्या करेगा? अगर पोर्ट स्कैन करने के बाद में इंट्रूशन डिटेक्शन होता है तो उसको डिनाई करता है. तो डिनायल सर्विसेज रहेगी और उसके बाद में वो इंट्रूशंस को अलाउ नहीं करता है फॉर एक्सेसिंग. सो दिस इज हाउ द NIDS on the cloud is being implemented. Then the last security mechanism we have already seen data security, then network security, and the last security is the host security. Host means what? The one who is accessing the system. So host means the one who is has initiated to perform the working on the cloud. So it prevents attacks. So host security prevents attacks, minimizing the impact of successful attack on the overall system. Overall system के ऊपर जो attacks है उसको minimize करता है. Responding to attacks when they occur. जब attacks होता है तो उसको भी respond करता है, prevent करता है, minimize करता है impact को. Rolling out a patch across the infrastructure takes 3 simple steps. Rolling out patch means patch is basically suppose one network system is already working, one application server is already working and we want something to be installed into it. तो हम patches run करते हैं उसके अंदर. Patch is one type of software which is being included in the running processes and used to implement some extra things, extra services to it. तो ये 3 चीजें implement करता है. Patch your AMI with the new service fixes, test the results and relaunch your virtual servers. तो सबसे पहले क्या करता है वो fix up करता है सारी AMI सर्विसेज एंड देन उसको टेस्ट करता है रिजल्ट्स को और उसके बाद में फिर से रीलॉन्च करता है वर्चुअल सर्विस को. तो सर्विसेज स्टॉप होती हैं पहले, फिर पैचेस इंस्टॉल होता है और उसके बाद वर्चुअल सर्वर फिर स्टार्ट होता है. जब वर्चुअल सर्वर फिर से स्टार्ट होगा तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जो हमने पैच के लिए पैच के थ्रू इंस्टॉल की. There is a concept of something called a system hardening. System hardening क्या होता है ये भी आपको कई बार टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टम हार्डनिंग. सिस्टम हार्डनिंग का मीनिंग क्या होता है? सर्वर हार्डनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसेबलिंग एंड रिमूविंग अननेसेसरी सर्विसेज एंड एलिमिनेटिंग द अनइम्पोर्टेंट यूजर अकाउंट्स. मतलब सिस्टम हार्डनिंग का मतलब ये होता है कि सिस्टम में जो सर्विसेज जरूरत की नहीं है उनको हटा देना या उसको एलिमिनेट कर देना, उसको डिसेबल कर देना. जो अनइम्पोर्टेंट यूजर्स अकाउंट्स हैं, जो यूजर अकाउंट्स बहुत टाइम से एक्सेस नहीं हो रहे हैं, उनको बंद कर देना. जैसे कि ये हमारा एक सर्वर क्रिएटेड है, उसमें कोई एक यूजर क्रिएटेड है, वो यूजर जो है वो एक लिमिट तक एक्सेस नहीं हुआ 4-5 दिन तक. जब जैसे आप अगर कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हो और अगर वो आपने बहुत टाइम तक एक्सेस नहीं किया तो फिर आपका वो अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली या फिर रिमूव हो जाता है.
तो इस तरह से उसको सर्वर हार्डनिंग की जाती है। तो सिस्टम हार्डनिंग का मतलब क्या होता है कि सर्वर के अंदर जो अन इम्पॉर्टेंट यूजर अकाउंट्स हैं जो बहुत टाइम से एक्सेस नहीं हुए हैं और जो सर्विसेज बहुत टाइम से यूज में नहीं आ रही है, अननेसेसरी सर्विसेज हैं, उसको निकाल देना या फिर उसको डिसेबल कर देना, रिमूव कर देना, दैट इज कॉल्ड एज हार्डनिंग ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल बेस्टाइल लाइनेक्स, लाइनेक्स में एक ये बेस्टाइल लाइनेक्स रहता है। ये बेस्टाइल लाइनेक्स क्या करता है, ये जो भी अननेसेसरी यूजर अकाउंट्स हैं और जो सर्विसेज हैं यूज में नहीं आती हैं उसको डिसेबल कर देता है। सिस्टम हार्डनिंग में हेल्प करता है ये बेस्टाइल लाइनेक्स, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये वर्क होता है। तो इसको हम पैच की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर जब भी बात कर रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी या ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्लाउड के ऊपर जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, रेड हैट लाइनेक्स, स्पो यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल होते हैं। व्हाई? बिकॉज दीज आर द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, तो इसको चार्जेस नहीं भरने पड़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो अननेसेसरी व्हाई द वेंडर इज गोइंग टू पे द अमाउंट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, एज इफ उनको जो है वो नेटवर्क सर्विसेज के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत जगह पैसा खर्चा करना पड़ता है मैन पावर के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो उसको अवेल करते हैं। तो आप अगर बैंकिंग में देखोगे, जहाँ पर भी मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह रहते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, उनके जो मेन सर्वर्स रहते हैं, दो सर्वर्स आर बेसिकली ऑन द लाइनेक्स एनवायरनमेंट, लाइनेक्स के ऊपर वर्क होता है। So no network services are running except those necessary to support the servers function. अब यहाँ पर क्या किया जाता है, हमने सिस्टम हार्डनिंग की बात की, तो जो भी नेटवर्क सर्विसेज जो काम में नहीं आ रही है उन सब सर्विसेज को निकाल दिया जाता है, सिवाय सर्वर की फंक्शनिंग की सर्विसेज को छोड़ के। जो अननेसेसरी सर्विसेज है उन सबको निकाल दिया जाता है। नो यूजर अकाउंट्स आर enabled on the server except those necessary to support the services running on the server or needed users. मतलब सिर्फ जो नीडेड यूजर्स हैं उनकी सर्विसेज चालू होते हैं, उनके अकाउंट चालू होते हैं। जो यूजर्स बहुत टाइम से एक्सेस नहीं है उनको निकाल दिया जाता है, जो अभी हमने सर्वर हार्डनिंग के बारे में बताया। All necessary services run under a non-privileged role account, that is run MySQL as MySQL user not root। मतलब जो सर्विसेज जो चीज प्रोवाइड करती है वो सर्विसेज उस अकाउंट से वर्क करती है। मतलब अगर सपोज MySQL इज अ डेटाबेस रनिंग ऑन द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर MySQL जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, दैट वर्क्स ऑन द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। रेड हैट लाइनेक्स, स्पो यूनिक्स वगैरह के ऊपर नहीं करता, तो उनका डेटाबेस इसके अंदर अवेलेबल रहता है। तो अगर उसको डेटाबेस से एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो वो MySQL नाम का यूजर एक्सेस करेगा, रूट यूजर एक्सेस नहीं करेगा। रूट क्या होता है? रूट इज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। रूट जो है वो सुपर यूजर है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो उसको सारी प्रिविलेजेस अवेलेबल रहती है लाइनेक्स में, तो वो इस्तेमाल ना करके MySQL जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको पूरी प्रिविलेजेस ना अवेलेबल हो। So when possible, run services in a restricted file system such as chroot jail। जो chroot jail करके सर्विसेज हैं वो रन किए जाते हैं रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में। तो इस तरह से सिस्टम हार्डनिंग इज वन ऑफ द वे टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द नेटवर्क। होस्ट सिक्योरिटी इस तरह से प्रोवाइड की जा सकती है कि जो एक नेट सिस्टम है उसके ऊपर होस्ट सिक्योरिटी ऐसे प्रोवाइड की जा सकती है। देन we have already seen the this intrusion detection system. So this is our IDS server which is running on OSAC application server, OSAC application and the load balancer. Now OSSEC is one of the monitoring system, monitors the state of your server for annual for anything unusual। तो ये जो OSAC है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी क्लाउड है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी क्लाउड मैकेनिज्म है जो ये मॉनिटर करता है कि कोई अनयूजुअल थिंगिंग तो नहीं हो रही है यहाँ पे। IDS server is intrusion detection system. So this is the intrusion detection system of the host intrusion detection system, HIDS। So कहीं पे होस्ट पे तो नहीं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंट्रूशन हो रहा है तो उसको डिटेक्शन करने के लिए उस OS सेट करके मॉनिटरिंग सिस्टम है जो उसको मॉनिटर कर रहा है। तो ये एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर रन हो रहा है। ये इनके देखो ये पोर्ट्स बताए हुए हैं, ये एप्लीकेशन है।
सिमिलरली जैसे हमारा फायरवॉल का कंसेप्ट था वैसे ही यहाँ लोड बैलेंसर है, देन एप्लीकेशन सर्वर है और आईडीएस सर्वर है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट हुआ क्रिएट यहाँ पर होस्ट पर। System for all signs of compromise and notifies when any core operating system or service file changes। मतलब इसका काम क्या करना है कि हमेशा मॉनिटरिंग करते रहना, कहीं कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम में कोई चेंजेस तो नहीं हुए, कोई सर्विस फाइल में कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है, तो इसको सिर्फ वो मॉनिटर करता रहता है। होस्ट इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी सर्विसेज जो होस्ट के ऊपर रन हो रही है उसको वो मॉनिटर करता रहता है। इन लाइनेक्स इट यूजेस द ओसैक फॉर होस्ट बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इस तरह से ये ओसैक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है होस्ट इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ये वर्क होता रहता है। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट वन। वी हैव द अदर सिक्योरिटी प्रोविजंस। इसके अलावा हमारे पास में कौन कौन से दूसरे सिक्योरिटी प्रोविजंस हैं जो हमने 3 देखे थे। एक हमने देखा है कि डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड होस्ट सिक्योरिटी। अदर वे वी कैन प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू आवर सिस्टम इज थ्रू एंटीवायरस सिक्योरिटी। तो एंटीवायरस सिक्योरिटी हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं सिस्टम को? हम एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं सिस्टम में। सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। So in our network, in our security mechanism, we can have antiviruses. Then we have credential management. Credential management means किसी की यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है। जो हम लोग पासवर्ड्स के मैकेनिज्म चाहते हैं कि पासवर्ड शुड कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर एंड शुड बी चेंज विद इन 30 days। और अगर वो 30 डेज तक यूज में नहीं आ रहा है अकाउंट तो फिर उसको डिसेबल करना या रिमूव करना, इस तरह से क्रेडेंशियल मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। Then compromise response. Compromise response means instead of keeping the information on the cloud, we can have a very big hard disk available at our console, and instead of using that cloud environment, putting all those data which are being required by us at our place only। तो इस तरह से हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं सिक्योरिटी के साथ में कि हम खुद ही अपनी खुद की सिक्योरिटी खुद ले ले। बट ये बहुत कम होता है इतना, मतलब बड़ा बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आजकल डेटा सेंटर्स ही क्रिएट करते हैं, वो दूसरे का ही एक्सेस करते हैं रिसोर्सेज, क्योंकि वंस द इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग क्रिएटेड तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दूसरे यूज में नहीं करना, मतलब दूसरे लोग भी यूज करेंगे ताकि उसके पैसे निकल पाए ना, बिकॉज इट इज नॉट a very simple task to create such type of infrastructure. So once that infrastructure is being used, is being created, is being made, so it is being used by as many person as you want by pay on use cases. So it is the one which is being provided by the cloud. So cloud provides the services to their client through the pay as you use. Then the last security mechanism is the data segmentation. Data segmentation का मतलब क्या हुआ कि डेटा को तोड़ तोड़ के रखना। इसमें वर्टिकल सेगमेंटेशन भी रहता है और इसमें हॉरिजॉन्टल सेगमेंटेशन भी रहता है। दैट यू विल बी लर्निंग इन द डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउस। तो उसमें सपोज अगर हमारा वी हैव अ डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, तो अगर हमारा डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में है एंड द टेबल कंसिस्ट ऑफ से फॉर एग्जांपल 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4, 5 कॉलम्स है और रोज भी इसी टाइप से हमारे पास में है। तो क्या होगा डेटा सेगमेंट में वर्टिकल सेगमेंटेशन इसको इस तरह से डिवाइड कर देगा। ये एक सेगमेंट हो गया, ये 2 सेगमेंट हो गए, तो 3 सेगमेंट्स में वर्टिकली डिवाइड कर दिया डेटा, एंड तीनों सेगमेंट्स अलग अलग लोकेशन पे रिमोटली एक्सेस रखे जाएंगे। तो ये जो है ये सर्वर 1 पे स्टोर कर दिया। सपोज इस डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड जो डेटा रहता है इस डेटा को सर्वर 2 पे डाल दिया और इस डेटा को सर्वर 3 पे डाल दिया, एंड व्हेनेवर इट इज बीइंग रिक्वायर्ड तो क्वेरी is being fired to get the data from all these servers and get the accessibility at one location। तो इस तरह से इसका जो डेटा है वो हैक होने के भी चांसेस नहीं, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा कि डेटा कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड दैट टू इंटरनली। ये हो गया हमारा वर्टिकल सेगमेंटेशन। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल सेगमेंटेशन भी होता है। हॉरिजॉन्टल सेगमेंटेशन में हॉरिजॉन्टली इस तरह से डिवाइड होता है हमारा
सेगमेंट। तो हॉरिजॉन्टली में ये पहली रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, या 1000 रो है तो 400 रो इधर, 200 रो इधर, 300 रो इधर, इस तरह से वो अलग अलग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों सेगमेंटेशन किए जा सकते हैं। और डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर एनवायरनमेंट में, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में इस तरह से रखा जा सकता है। तो और ये सब सिस्टम जो है इंटरनली होता है, और जो बनाने वाला सिस्टम है, द प्रोग्रामर और द डेवलपर आल्सो डजंट नो हाउ इट इज being distributed because the random concept has been utilized. One more thing, एक ये credential management में मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे जो हम यूजर आईडी और लॉगिन करते हैं तो आपको वो पूछता है कि टाइप योर कोड, क्या बोलते हैं, बूट बोलते हैं, बूट कोड। तो इसमें आपको कई बार इमेज आती है, उस इमेज को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि क्लिक ऑल दोज इमेजेस वेयर द लाइट्स आर विजिबल। तो उसको आप क्लिक करते हो तो आपको वो देख लेता है कि रोबोट के थ्रू तो नहीं हो रहा है यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन, क्योंकि मैनुअल अगर लॉगिन हो रहा है तो वो स्क्रीन के ऊपर देखेगा कि कौन कौन से स्क्रीन के ऊपर लाइट है। जो हम थर्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूजर आईडी पासवर्ड के बाद में कोड टाइप करते हैं ना, so that is also one of the way to protect the system, that is credential management. Okay, so this is how what we have learned. So let's wind up with the concept of the security. So what all we have seen in the security in last sessions and today's session is the security is being provided, the data security, network security, and the host security. For the data security, we have seen that the security is being provided using the encryption decryption methodology. Encryption is to hide the information, and at the destination it is being revealed, it is being formed in the original manner using decryption. So for the entire process, the encryption decryption करने के लिए key or the password is being provided and that is being done. So we have already seen the traditional data security and the cloud data security, किस तरह से ये दोनों differ करते हैं. Then the network security is being provided through the firewalls. ये हमने देखा कि network security किसके through provide किया जाता है, firewalls के through. Firewalls में layers रहते हैं, security layers, load balancer रहता है, DMZ application server है, और then internal डेटाबेस सर्वर है. तो इंटरनल डेटाबेस सर्वर एज इट इज किसी को हैक नहीं होता, क्योंकि वो जो उसकी पेरीमीटर लेयर्स रहती है, सिक्योरिटी लेयर्स है, उसके थ्रू फायरवॉल्स की लेयर्स के थ्रू फर्स्ट फायरवॉल, सेकंड फायरवॉल, थर्ड फायरवॉल को क्रॉस करके जाना इज नॉट पॉसिबल. एज इट इज नेटवर्क सेगमेंटेशन का किसी को भी एक्सेसिबिलिटी नहीं दी जाती वंस द सिस्टम इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड. और इसको डिटेक्ट करने के लिए NIDS, नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इस्तेमाल किया जाता है. देन Amazon ने खुद का इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्रिएट किया हुआ है अपार्ट फ्रॉम द NIDS. NIDS तो इस्तेमाल हो ही रहा है, उसके अलावा उसने Amazon ने अपना खुद का इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है वो यूज किया हुआ है. एंड द लास्ट वन इज द होस्ट सिक्योरिटी. होस्ट सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि जो खुद का जो सर्वर है वो खुद अपने तरह से किस तरह से सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सकता है. तो होस्ट जो है वो उसका होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, अवेलेबल है. यूजर्स जो यूज में उसमें सिस्टम हार्डनिंग पड़ा था कि सिस्टम हार्डनिंग कर लेते हैं. सिस्टम हार्डनिंग मतलब जो यूजर्स बहुत टाइम तक यूज नहीं आ रहे हैं, डेड यूजर्स हैं, जो सर्विसेज इस्तेमाल नहीं हो रही है, जो सर्विसेज में नहीं आ रही, उनको डिसेबल करना, उनको रिमूव करना, यूजर्स को डिसेबल करना, उनको रिमूव करना, इस टाइप से सिस्टम हार्डनिंग की जाती है. Apart from these security mechanism, some other securities we have already seen. एंटीवायरस यूटिलिटीज को यूज कर सकते हैं. उसके बाद में क्रेडेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं कि जो हमारा यूजर आईडी पासवर्ड है वो पासवर्ड इतने डिजिट का होना चाहिए, इतने टाइम के बाद चेंज होना चाहिए. 3 बैड अटेम्प्ट्स जो है उसके बाद में अकाउंट लॉक हो जाता है. इस तरह से हम इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. देन द अदर इज डेटा सेगमेंटेशन. डेटा सेगमेंटेशन में क्या होता है, वर्टिकल सेगमेंटेशन और हॉरिजॉन्टल सेगमेंटेशन करके डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है. So these are the different mechanisms to provide the security. So now today I am closing the session, today's session.